and welcome back to my channel, that is AMS MBBS Lectures. This is the part 5 video. We are going to discuss the bacterial identification for all the automated systems, right? Now, इससे पहले बहुत सारे videos आ गई है. Under that video, we have covered up something that is called as part 1 video was all about a general introduction to the topic of bacterial identification. Part 2 video was all about the catalase test and the oxidase test under the common test that we have covered. Part 3 video was regarding the I, C, U and the T test that we do for the gram-negative organisms. And the part 4 video was all about the gram-positive organisms के लिए कौन से biochemical test होते हैं. Now the automated system, that is MALDI-TOF and Vitek, is something that we're going to discuss in the part 5 video. So without a further ado, let's get started into the video, guys, and that is the automated systems. Now, before diving into the topic, what all different types of automated identification systems are available for us to identify? Starting off with the very first one, that is MALDI-TOF. Second, we have Vitek2. Then we have the Phoenix, and lastly, we can also write the example of microscan walk-away system, that is the Beckman-Coulter. तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो मुझे यहाँ पे आपको मेंशन करने थे रिगार्डिंग दी ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम. ना अब ये सारे के सारे जो होते हैं, डेफिनेटली ऑल ऑफ दीज सिस्टम्स दैट आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर, all of them are used for something. तो चारों के चार systems are used for something that is called as the automated identification of the bacteria. तो जो भी automated identification के तो यूज तो कर सकते हैं उसको. Secondly, जो हम लोग के नीचे के जो बचे हुए तीन हैं, these are okay also used for something that is called as the AST. What is AST? Antimicrobial susceptibility testing. ठीक है, that is how you can do this. तो जैसी जनरल इन्फो थी अबाउट कि कौन कौन से सिस्टम्स अवेलेबल है हमारे पास एंड इनके फंक्शंस क्या होगा, क्या एप्लीकेशंस होते हैं, वो मैंने बता दिया. बिफोर गोइंग टू द डिटेल्स, अब इन सारों में से MALDI-TOF एंड Vitek इज समथिंग दैट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड. हम लोग के सबसे ज्यादा जो कॉमनली यूज होते हैं वो MALDI-TOF एंड Vitek होते हैं. तो इसकी ही डिटेल्स मैं आपको भी आने वाले स्लाइड्स में एक्सप्लेन करूंगा. आगे जाने से पहले अ कॉमन कंफ्यूजन दैट कैन हैपन एंड दैट इज this thing that we're dealing, MALDI-TOF, Vitek, these are automated identification system. Never get confused with something called as the automated culture systems. Automated culture systems, two important commonly used systems, that is your BACTEC or alert, so BACT or alert and BACTEC. ये दो important examples इसके अंदर आते हैं. Again, इस पे भी एक video available है channel पे. अगर if you want to know the details, do watch this video. I will pin this as well on the I button up there. तो आप लोग यहाँ पे उसको देख लेना, यहाँ पे लिंक आ जाएगी. तो ठीक है, तो ये कंफ्यूजन ना हो, दैट्स द रीजन आई कंपैरेटिवली शोन. अब दोनों सिस्टम्स जो होते हैं, ऑटोमेटेड कल्चर सिस्टम्स एंड आइडेंटिफिकेशन, लेट्स हैव अ लुक ऑन द इमेज एज वेल, है ना. उनके इमेजेस मैंने यहाँ पे ऐड ऑन किए थे यहाँ पर. तो इफ यू हैव अ लुक ओवर हियर, तो MALDI-TOF एंड Vitek जो होता है वो कुछ इस तरीके, दिस इज MALDI-TOF, दिस इज Vitek, है ना. ये जो होते हैं BACT एंड BACTEC के ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर सिस्टम्स होते हैं. तो दिस आर द इमेजेस, जस्ट इमेजेस मैंने यहाँ पे शो किया आप लोगों को. यू कैन हैव अ लुक ऑन द इमेज ओवर हियर. ऊपर के जो दो इमेजेस है, these are automated identification systems and the lower images, okay, this lower two images, these are automated culture systems. ठीक है, ऊपर वाले आइडेंटिफिकेशन के, सेकंड नीचे वाले जो हम लोगों के that is for your culture. Done. आज का मेन टॉपिक इज ऑल अबाउट टू अंडरस्टैंड अबाउट द MALDI-TOF and the Vitek. So let's start that part over here. Starting off with the MALDI-TOF MS. Now what is the full form of this MALDI-TOF MS? का फुल फॉर्म क्या होता है? तो उसका फुल फॉर्म है मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसॉप्शन आयोनाइजेशन टाइम ऑफ फ्लाइट मास स्पेक्ट्रोमेट्री. सच अ ह्यूज फुल फॉर्म इज देयर, राइट. तो इसका जो फुल फॉर्म है, अगर आप लोग ने इसका प्रिंसिपल अंडरस्टैंड कर दिया तो यू आर गुड टू गो टू अंडरस्टैंड द फुल फॉर्म एज वेल. सो फॉर दैट दिस इज एन इमेज अगेन दैट इज आई हैव टेकन फ्रॉम द अपूर्वा शास्त्री में इमेज दिया हुआ है. तो लेट्स डिकोड द इमेज फर्स्ट ऑफ ऑल. दिस इज अ स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ MALDI-TOF का. This image is going to explain the principle, okay, on which MALDI-TOF is working. So let's first of all decode the image and understand the principle of MALDI-TOF MS, right? So first of all, MALDI-TOF definitely हम लोग किसी भी culture के identification के लिए करते हैं. So to start the whole thing, we require the MALDI-TOF slide, right? हम लोग को सबसे पहली चीज जो चाहिए होती है, that is a MALDI-TOF का slide चलेगा हम लोग को. ठीक है, तो first step is this. अब किसी भी कल्चर का आइडेंटिफाई करना है ना, तो we require a culture plate जिसमें ऑलरेडी ग्रोथ हो रखी है. So we're going to take that thing. तो एक कॉलोनी हम लोग लेते हैं यहाँ से, वन कॉलोनी, एंड दैट इज स्मीयर्ड इन द वेल. अब इस पर्टिकुलर स्लाइड पे आप देख सकते हो मल्टीपल छोटे छोटे वेल्स हैं. तो कोई भी एक वेल के अंदर वी आर गोइंग टू स्मीयर द कॉलोनी ओवर हियर. इधर तक क्लियर हो गया. सेकंड ऑफ ऑल, जब हम लोग कॉलोनी स्मीयर करते हैं, साइमल्टेनियसली वी हैव टू ऐड अ ड्रॉप ऑफ मैट्रिक्स सोल्यूशन. सपोज आई एम सेइंग कि मैंने इस पर्टिकुलर वेल के अंदर मेरी कॉलोनी को ऐड किया है, स्मीयर किया है, उसी कॉलोनी में एक ड्रॉप हम लोगों को किसका ऐड करना पड़ेगा, मैट्रिक्स सोल्यूशन का ऐड करना पड़ेगा. दिस इज द प्रोसीजर टू प्रिपेयर द MALDI-TOF स्लाइड. अब ये स्लाइड तो प्रिपेयर हो गई. अब ये स्लाइड प्रिपेयर होने के बाद इसे कहाँ सेंड करना है, वी आर गोइंग टू लोड इट.
with a slide is loaded into the system. Which system? Definitely MALDI-TOF. तो ये पूरी स्लाइड जो होगी ये शिफ्ट हो जाती है into the MALDI-TOF. तो इस सिस्टम के अंदर आपने लोड कर दी। क्लियर हुआ यहाँ तक कि हम लोगों ने पहले एक स्लाइड ली, उसमें हम लोगों ने हमारी कॉलोनी को ऐड किया, एक ड्रॉप मैट्रिक्स सोल्यूशन ऐड किया, एंड उसको हम लोगों ने किस में ऐड कर दिया? इनटू द सिस्टम, इनटू द मशीन, दैट इज योर MALDI-TOF, राइट? वी हैव दिस थिंग मैट्रिक्स असिस्टेड। तो पहला सेगमेंट तो क्लियर हो गया कि यस वी आर एडिंग अ मैट्रिक्स सोल्यूशन, तो इट इज मैट्रिक्स असिस्टेड वाला पार्ट, राइट? अब मशीन में ऐड करने के बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लेजर रिटर्न ओवर हियर। ओके, तो वी आर गोइंग टू हैव अ लुक, सी यहाँ पे क्या होता है। जैसी मशीन में एंटर होता है, अ बीम ऑफ लाइट, ओके, बीम ऑफ लाइट दैट इज लेजर लाइट इस पर्टिकुलर वेल, जो भी हम लोग की जो स्लाइड है उस पर ये पर्टिकुलर लाइट ऐसे फोकस होती है। अब जैसी ये लाइट इस पर फोकस होने वाली है, व्हाट विल हैपन गाइस? mark the words, okay, mark the words over here. Ionization and desorption of the matrix is going to generate some ions, ठीक है? एंड ये जो दिख रहा है आप लोगों को सारे आयंस, सारे के सारे कैसे दिख रहे हैं? दीज आर प्लस वाले आयंस, मतलब दीज आर सिंगली प्रोटोनेटेड आयंस का जनरेशन होगा यहाँ पर, ठीक है? तो जो भी हम लोगों ने उस वेल में डाला था उसमें लेजर लाइट पास होती है, टू इंपॉर्टेंट थिंग्स विल टेक प्लेस, आयोनाइजेशन एंड डिसऑप्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस, एंड उसके वजह से व्हाट इज द एंड रिजल्ट? सिंगली प्रोटोनेटेड आयंस आर रिलीज्ड। अब ये जो आयंस होते हैं जो यहाँ पे रिलीज हो गए वो ऊपर की तरफ जाएंगे, राइट? एंड दे गोइंग टू पास थ्रू अ ट्यूब, एंड दैट ट्यूब इज कॉल्ड एज द फ्लाइट ट्यूब। वही चीज यहाँ पे दिखाई गई, एक बड़ा बड़ा सा ट्यूब है यहाँ पर, एंड उस ट्यूब को हम बोलते हैं फ्लाइट ट्यूब, जिसके अंदर हमारे सारे पॉजिटिवली चार्ज ऑर्गेनिजम्स जाते हैं। After going through this tube, it is undergoing a single processing. It will be singly processed, and ultimately, what is the end result over here? We are going to have a look on the spectrum. एक spectrum generate हो गया यहाँ पर आप लोगों का, right? And this is the finding. ये जो spectrum generate होके आता है guys, this is very much specific for each and every bacteria, each and every organisms के लिए बहुत specific होता है। ठीक है, तब तो सारा कुछ क्लियर हो गया, तो पूरा प्रोसीजर था, प्रिंसिपल, एवरीथिंग इज डन। Now the next important catch segment to understand over here is the same thing जो था principle that I have explained over here in details, okay? Flowchart के form में explain किया है, this is the full form, you can have a look on the full form about there. So this is the image. तो एक एक करके हम लोग understand करते हैं again in the written words the principle. First of all, colony is mixed with the matrix solution on a slide. तो देखा था ना हम लोगों ने इमेज में, we all took a slide, उस slide में हम लोगों ने colony ऐड करी थी along with the matrix solution का एक drop. After that we loaded the whole slide into the सिस्टम में लोड करने के बाद उस पर एक लेजर लाइट पास होती है, तो राइट सिस्टम में लोड कर दिया आपने सेकंड, देन वी ऐड, ओके, उस पर एक लेजर बीम जाती है। जैसी लेजर बीम उस पर जाती है, व्हाट आर द टू थिंग्स दैट इज हैपनिंग? आयनाइजेशन एंड डिसऑप्शन विल टेक प्लेस, ओके? डिसऑप्शन आयनाइजेशन हो जाएगा, किसका होता है? व्हाट थिंग गेट्स डिसॉप्ड, वो किसका डिसऑप्शन एंड किसका आयनाइजेशन होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, एंड दैट इज बैक्टीरियल राइबोसोमल प्रोटीन्स। एक सिंगल इसमें बात करने का प्रिंसिपल फॉर MALDI-TOF, तो यू शुड से इट इज मेनली बेस्ड ऑन दी बैक्टीरियल राइबोसोमल प्रोटीन्स, ठीक है? किस पे बेस्ड है? व्हाट इज द मेन बेसिस ऑफ दिस एंटायर प्रिंसिपल? सो इट इज दी बैक्टीरियल राइबोसोमल प्रोटीन्स, दैट इज द मेन थिंग ओवर हियर। जैसे ये आयनाइजेशन एंड डिसऑप्शन होता है, लेजर लाइट पास होती है हम लोग के स्लाइड के थ्रू, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन? That is, it will generate the singly protonated ions. All those plus वाले दिख रहे थे ना इमेज में, तो all those protons मतलब positively charged ions, and that too singly positively charged ions का generation होता है। And from where, okay, ये ions कहाँ पास होते हैं? They're going to pass through something that is called the flight tube के थ्रू पास करते हैं वाले ions, and जैसे ये पास करेंगे, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, ईच पर्टिकुलर आयन इज गोइंग टू हैव देयर ओन स्पीड, ठीक है? ट्यूब है ना, फ्लाइट ट्यूब के थ्रू जब वो पास होते हैं, इस पर्टिकुलर ट्यूब से जो पास हो गए, तो वो अपनी खुद की स्पीड, खुद की वेलोसिटी के थ्रू पास होते हैं। एंड ये स्पीड किसके ऊपर बेस्ड होती है? इट इज बेस्ड ऑन देयर मास टू चार्ज रेशियो, m/z रेशियो, और मास टू चार्ज के रेशियो पे बेस्ड होती है वो स्पीड। उन पर्टिकुलर सिंगली प्रोटोनेटेड आयंस की स्पीड इस पर्टिकुलर रेशियो पे बेस्ड होती है, ठीक है? तो डन टिल हियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज, एंड बेस्ड ऑन देयर टाइम ऑफ फ्लाइट, के मतलब इतना समय वो लेती है टू पास थ्रू दैट पर्टिकुलर ट्यूब, वी हैव समथिंग दैट इज कॉल्ड एज ए कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम का जनरेशन होता है, जो कि बहुत ज्यादा यूनिक होता है टू ईच एंड इंडिविजुअल स्पीशीज, हर एक स्पीशीज के लिए बहुत ज्यादा यूनिक होता है, बिकॉज वाई इट इज रिप्रेजेंटिंग द राइबोसोमल प्रोटीन, एंड हर एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया का राइबोसोमल प्रोटीन इज गोइंग टू डिफरेंशिएट, है ना? देयरफॉर MALDI-TOF इज वेरी मच स्पेसिफिक, राइट, इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। तो विद दैट, तो ये जो प्रीवियस स्लाइड थी, दैट वाज ऑल अबाउट द एंटायर प्रिंसिपल इन द रिटन वर्ड्स। तो यहाँ तक इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई हम लोग को। नाउ कम्स इनटू पिक्चर दैट इज कॉल्ड एज द एप्लीकेशन, गाइस। इफ यू हैव अ लुक ऑन द एप्लीकेशंस, तो वेरी सिंपल, इट कैन एक्यूरेटली आइडेंटिफाई, बहुत स्पेसिफिक है ना गाइस, एंड व्हाई इट इज स्पेसिफिक? बिकॉज इट इज मेनली गोइंग टू आइडेंटिफाई, इट इज गोइंग टू work upon the ribosomal proteins, right? It is working upon the bacterial ribosomal proteins, therefore it is very much
एक्यूरेट एंड बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है ये वाला। एंड किन किन ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करेगा, बैक्टीरिया, फंगाई, माइकोबैक्टीरिया एटसेट्रा, हर एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकता है। लेट्स जंप टुवर्ड्स द सेकंड वन एंड टर्न अराउंड टाइम इट्स ओके वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, बहुत मतलब लाइक विद इन फ्यू मिनट्स विल गेट द रिजल्ट्स आउट देयर। तो टर्न अराउंड टाइम इज ऑफ वेरी फ्यू मिनट्स एंड साथ ही साथ इट कैन आल्सो आइडेंटिफाई ऑर्गेनिजम्स ओके फ्रॉम द पॉजिटिवली फ्लैग्ड ब्लड कल्चर बॉटल्स। अगर इफ यू आर परफॉर्म द ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर सिस्टम यूज किया आप लोगों ने, वहां से पता चल गया यस दिस पर्टिकुलर बॉटल इज पॉजिटिव, देयर आर सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इनटू इट, so you can utilize the specimen from that, load the bacterial colony from that into the slide, put it into the system, and you get the results within few minutes. So this is all the application of the MALDI-TOF MS. It is only and only used, remember, MALDI-TOF MS सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है. इट इज नॉट यूज्ड फॉर AST एंटी माइक्रो टेस्टिंग के लिए यूज नहीं होता. Done with the first important system, that is your MALDI-TOF MS. Let's jump towards the next one, and that is your VITEK 2. अब ये जो VITEK 2 होता है ये कैसे काम करता है, what is the principle? Let's have a look over here. So if you have a look over here, the principle, the identification card contains several wells. Again, let me just put the image over here. Yes, we have the image. So ये जो equipment दिख रही है हम लोगों को यहाँ पर, this is the entire apparatus. This is what we refer to as the VITEK. And the image above over here that I'm highlighting, this is a card. Okay, this is something called as the VITEK card. तो इस कार्ड के अंदर भी आप देख सकते हो, वी कैन अप्रिशिएट मल्टीपल वेल्स, बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं इस कार्ड के अंदर भी. तो सिमिलरली वही बहुत सारे वेल्स होते हैं, तो हर एक वेल के अंदर वहां पे इन MALDI-TOF वी वर एडिंग द कॉलोनी अलोंग विद द मैट्रिक्स सॉल्यूशन. नाउ इन दिस पर्टिकुलर थिंग okay there is a test substrate which is already present in this wells. So in well के अंदर already there is a test substrate that is present, right, which is going to measure what, metabolic activity. So again, in one single word, if I want to explain the principle of your VITEK, so it comes out to be the metabolic activity. Comparative to something called as MALDI-TOF, one single word, ribosomal proteins, and this is working upon the metabolic activity, right? जो कि डिटेक्ट करी जाती है. Very important, colorimetry is like something that we are going to use over here to identify your organisms for VITEK. So क्या होता है, ये एक स्लाइड है, वी हैव अ कार्ड एंड कार्ड में बहुत सारे वेल्स होते हैं जिसमें ऑलरेडी टेस्ट सबस्ट्रेट प्रेजेंट होती है. जैसे हम लोग इसके अंदर हमारी बैक्टीरियल कॉलोनी को ऐड करने वाले, जैसे हम लोग इसमें हमारा बैक्टीरियल कॉलोनी ऐड करोगे, वो जो टेस्ट सबस्ट्रेट होता है, ऑल दिस थिंग टुगेदर दे आर गोइंग टू रिएक्ट, मेटाबॉलिज्म इज गोइंग टू टेक प्लेस. ओके, मेटाबॉलिज्म इज गोइंग टू टेक प्लेस एंड उस मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस के ऊपर, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बेसिस पे हम लोग हमारी फाइंडिंग्स को अप्रिशिएट करते हैं यूजिंग द कलरीमेट्रिक मेथड्स, राइट. आइडेंटिफिकेशन ऑर्गेनिज्म का इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल दी वेल्स. जितनी भी वेल्स पे जितनी भी रिएक्शंस होती है उसके बेसिस पे हम लोग हमारे एंड रिजल्ट्स को हम लोग मेंशन करते हैं यहाँ पर, मतलब वो मशीन इक्विपमेंट जो होती है वो आइडेंटिफाई करके देती है. एंड अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट, एज आई सेड यू, कि हर एक वेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, देयर इज अ टेस्ट सबस्ट्रेट प्रेजेंट, राइट. तो कि ये जो टेस्ट सबस्ट्रेट होता है, इट इज कॉमन फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, द आंसर इज नो. अगर मैं ग्राम पॉजिटिव की बात करूँ, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स की बात करूँ, फास्टिडियस बैक्टीरिया की बात करूँ या यीस्ट की बात करूँ, हर एक के लिए टेस्ट सबस्ट्रेट इज गोइंग टू चेंज. देयरफॉर separate ID cards are present, different ID cards are present for different types of organisms. So and yeah, and what is the time of getting the result? 4 to 6 hours is that time that is required for this machine to, for this particular equipment to give the results. That is 4 to 6 hours. Done and dusted. And if you go with something that is called as the applications or the users of this VITEK 2, so two important applications, that is automated identification of the bacteria as well as AST of the bacteria, and along with, never forget, yeast as well. ऑलरेडी मैंने पहले ही बोला था, ओनली ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन, इट इज द यूज ऑफ समथिंग दैट इज कॉल्ड एज द MALDI-TOF, राइट, और इट इज द यूज ऑफ योर MALDI-TOF. एंड इफ आई से ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन अलॉन्ग विद AST, अगर दोनों बोल रहे हो तो द रेस्ट 3 इंपॉर्टेंट systems जो at the start of the video I have mentioned the 3 important systems, that is the VITEK, Phoenix, and we also have the micro scanaway walk system, right. So that is it for something this video, guys. I hope आप लोगों को ये चीज़ clear होगी about the VITEK 2 as well. So that is it. So with this we have covered the automated identification systems. मैंने आप लोगों को cover up करवा दिए यहाँ पर सारे के सारे. And automated identification systems, first of all, I let you all know the important 4 types of the automated identification systems के जो 4 types available होते हैं, of which 2 is something that is most commonly used, and that is your MALDI-TOF and VITEK. And we have also covered up with the VITEK 2. राइट, ये दोनों हम लोग ने इक्विपमेंट्स की पूरी डिटेल स्टडी करी. वी कवर्ड अप द प्रिंसिपल, वी ऑल्सो कवर्ड अप द एप्लीकेशंस ऑफ द 2 इंपॉर्टेंट सिस्टम्स, राइट. एवरीथिंग वाज ऑल कवर्ड, राइट. इफ आई गो विद द MALDI-TOF एंड प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ, तो येस, इट शुड बी द राइबोसोमल प्रोटीन्स. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द VITEK 2 एंड द प्रिंसिपल, so you should go with the metabolic activity, right.
So that is it, guys. With this, we mark the end of this entire video, as well as we have covered the bacterial identification in detail. In total 5 videos, we have covered this part, right? So that is it for this video, guys. And if you found this content useful, then do like, share, and subscribe to my channel, which is AMS MBBS Lectures. Thank you so much for watching. Any questions, queries, comment down. I'm there to answer it. And do let me know what all videos do you want in the next upcoming sessions, on what topic should I make. So accordingly, I'm going to post the things. So with that, bye bye. Till that time.